will have introduction to second law of motion. So before going to second law of motion, we should know what is actually momentum. See, here I have written amount of motion contained in a body is called as your momentum. Here I have given two examples. The first of all, you see here there is a truck. The mass of the truck is 100 kg and it is going with a velocity of 5 meters per second. There is another truck which will have the mass of 50 kg and it is going with a velocity of same velocity, that is 5 meters per second. So can you tell me one thing which is easier to stop? If somebody will want to stop from the front side, then which one will be easier? This one or this one? Definitely the answer will be this one because of lesser mass, right? Okay, this is the one case. One more case we will add here. If instead of this I will make this one 100 kg. Now this is the second case again. See, now this truck has a mass of 100 kg and it is going with a velocity 5 meters per second. Come here. Here also there is a truck which is having a mass of 100 kg. Both are having same masses, but it is going with a velocity of 10 meters per second. Now tell me the case which is easier to stop. So definitely the answer will be this one. In first case we have seen option 2 was our answer, and in second case we have seen option first is our answer. So the momentum is actually mathematically, I would like to write here mathematically this is the symbol for momentum. And the formula for momentum is, it is the product of mass and velocity. It means if your mass increases, then momentum increases. Even if your velocity increases, then also momentum increases. So momentum is that vector quantity which is purely depending upon mass and velocity directly. It is a quantity which has been derived by the combination of mass and velocity. So the effect of momentum will be felt if your mass increases as well as velocity increases. Subsequently, you can say if your mass and velocity decreases, then your momentum decreases. Okay, so you can have many examples of momentum even if in your cricket field also. You are seeing that a bowler is throwing the ball towards the batsman and the batsman is striking towards the boundary. So these are all the result of momentum. Okay, so greater the mass, greater the momentum, greater the velocity, greater the momentum. So in short, you can say theoretically momentum is the amount of motion contained in a body. So now the question is, why we are studying momentum in second law of motion? The reason is that when Newton produced the second law of motion, in there he has considered this quantity as the main criteria to produce force. So we'll get the formula which is very famous, you know, till date, that F equal to ma. And I will also say that that formula is partially correct. Also we'll say the derivative form of force. Okay, so this is the introduction for momentum. I will add some point for the momentum. Okay, so first take a screenshot here, then we will highlight some few points for momentum. Take a screenshot. Okay, see, we will start momentum. First point you can write
amount of motion contained in a body second point you can add the formula P equal to mass multiplied by velocity where momentum is a vector quantity. Second one is unit of momentum you can write in SI. See, the unit of mass is kg and the unit of velocity is meter per second. Then dimensional formula also you can write. This is the dimensional formula. Right, this much thing. We will add one more point here. Note it down or take a screenshot. Okay. One more point you write. Change in momentum. It means how much momentum is changing in a system. You can write like this. Change in momentum equal to final momentum minus initial. We can write like this also, delta P equal to final minus initial. Okay. So delta P is your change in momentum. We are going to discuss how the change happens. This is final momentum P और नीचे अगर F है तो this is final momentum and this is your initial momentum. P अगर नीचे I है तो समझ लेना कि वो है initial momentum. Write down this much. Okay. Note it down or take a screenshot. Well, now we'll see second law of motion. This is also called as real law of motion. Sometimes we call it as law of unbalanced forces. So let me write the statement fast. I am writing the statement. This is the Newton's second law of motion. You can write the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of force.
Note the statement. This is the statement for Newton's second law of motion. The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of force. So this is your Newton's second law of motion. Note down first. Okay. See, let us assume there is a mass m here. Okay. We are applying a force F for delta t time. Now what will happen? This mass will start to motion, and in delta time it will reach from position A to position B. Okay, let us consider the initial velocity of this mass is u. After delta time, when it reaches to the position B, its velocity has been changed to v. So let me repeat once again the situation here. First you take a mass m, you apply a force F. Initially the velocity was u. You apply the force, keep on applying the forces for delta t time. Let's assume that delta t is a very small time. Then what will happen actually? The body will acquire a new position from A to B. Now the body or the masses is at position B, but its velocity is no more u. Now the velocity has been changed to v. So the velocity has been changed. In the earlier case we have seen while discussing momentum, when your velocity changes, then also momentum changes. So in this condition, we will tell initial momentum. And we see the formula for initial momentum is mass into velocity. So my initial momentum will be m into u. Is it clear? Everybody, is it clear? Because the formula for momentum is mass into velocity. So this is the initial condition. This is the incident from where it has started, and this is the final condition. So in general cases, we assume that our mass is not changing frequently. So when this ball, or you can say this body, has been displaced from this position to this position, its mass does not change, but the velocity has been changed from u to v. So in this case, in this particular condition, we will assume that there is final moment. And now the mass is same. Here is also mass m, here is also m. So you can put m, but the velocity has been changed. Instead of u, you should write v. So this is initial momentum, this is final momentum. Here I will write now change in momentum. Momentum कितना change हुआ है हम थोड़ा देखेंगे ये इंसिडेंट. चलो ये जो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? वो था तुम्हारा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम हमारा आ चुका है यहाँ पे mv, और इनिशियल मोमेंटम तुम्हें पता है दैट इज योर mv. So our change in momentum is mv minus mv. Note it down, note कर लो और take a screenshot. Now come to the statement. What Newton told in his second law? He told the rate of change in momentum. Do you know that what it means? वो क्या बोल रहे हैं? ये जो मोमेंटम चेंज हुआ है इसका रेट, सी फिजिक्स में तो रेट का मीनिंग है एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम इज रेट. चलो ये मोमेंटम जो चेंज हुआ कितने टाइम में चेंज हुआ? डेल्टा टी टाइम में. सो अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट. द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कौन था? एफ था. सो चलो इसको फॉर्मूला में ट्राई करते हैं लिखने को. इसको थोड़ा फॉर्मूला में ट्राई करते हैं लिखने को. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब
कैन आई राइट mv माइनस mu अपॉन डेल्टा t, और तुम्हें प्रोपोर्शनल का सिंबल पता होगा इसे, और अप्लाइड फोर्स है हमारा F. सो दिस इज व्हाट Newton's second law of motion. Okay, this is the expression for Newton's second law of motion. The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. And जो लास्ट लाइन है ना तुम्हारा, and takes place in the direction of force, इसका मतलब ये है कि मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का तुम्हारा डायरेक्शन होगा. क्यों? क्योंकि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो क्वेश्चन है मोमेंटम का डायरेक्शन किस तरफ है, ना फोर्स का डायरेक्शन जिस तरफ. So both have same direction. That is why we provided in the last line it takes place in the direction of force. So ये सब चीज हमें वेक्टोरियली भी डील करना पड़ेगा, राइट? चलो इसको लिख लो, फिर उसको फाइनल फॉर्म दे देंगे फॉर्मूला को, फिर देख लेंगे हमें F इक्वल टू ma कैसे आ रहा है. चलो, सो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, F प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu इनटू डेल्टा. सो आई कैन राइट F प्रोपोर्शनल टू, यहां से मैं m कॉमन ले लेता हूं, सो अंदर बच जाएगा तुम्हारा v माइनस u अपॉन डेल्टा. और तुम्हें काइनेमेटिक्स में पता होगा चेंज इन वेलोसिटी और टाइम का मतलब है एक्सेलरेशन. सो F प्रोपोर्शनल टू m इनटू. ओके, चलो हम प्रोपोर्शनल के हटाएंगे. तो तुम्हें पता हो चुका होगा अभी तक कि प्रोपोर्शनल के हटाने से एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम ज्यादातर k मान लेते हैं. सो यहाँ पे k है तुम्हारा क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. चलो ओके, सो यहाँ पे और एक लाइन में ऐड करना चाहूंगा, बाय चूजिंग सुइटेबल यूनिट्स वी कैन गेट k इक्वल टू 1. अगर हम सबका यूनिट बराबर से मतलब चूज करने में, तो ये k का वैल्यू 1 आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा क्योंकि फोर्स का यूनिट अगर तुम ऐसा ही ले लोगे, फिर ये मास और एक्सेलरेशन वो साइड जाकर इसमें डिवाइड हो जाएगा, और मास एक्सेलरेशन का यूनिट जो होगा वो फोर्स के यूनिट से कैंसिल हो जाएगा और तुम्हें मिल जाएगा k इक्वल टू 1. चलो ये k इक्वल टू 1 को वापस पलट के इस वैल्यू पे डाल देते हैं. यहाँ पे देखते हैं f इक्वल टू, अगर मैं ऐसा लिख लूं कुछ देर के लिए, चलो मैं ऐसा लिख लेता हूं कि f इक्वल टू, अगर तुम्हारा k की बदले देखो मैं 1 लिख लेता हूं, 1 into m into a. तो क्या तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा, f इक्वल टू, and this is what you are remembering right now. Okay, so whenever someone is asking you what is the formula for force, you are suddenly telling that f equal to ma. How it came today we see. Okay, so आज हम ये कंक्लूजन में पहुंच गए कि f इक्वल टू ma तुम्हारा आया कैसे है एक्चुअली, लेकिन ये भी एक स्पेशल केस है. वो कौन सा केस है अभी मैं बताने वाला हूं, इसको थोड़ा नोट करो. चलो इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, ये जो फॉर्मूला आ गया f इक्वल टू ma, ये एक स्पेशल केस है जिसका मतलब है कि मास तुम्हारा कांस्टेंट है. अगर तुम्हारा कभी मास नहीं चेंज हो रहा है तभी ये फॉर्मूला वैलिड है. अगर मास चेंज हो रहा है तो ये फॉर्मूला तुम वहां पे नहीं लगा सकते हो. So I always say this formula is partially correct. Okay, so the actual formula is different. That is your differential form of force. We will see now. So before that,
I would like to recall you one more equation from Einstein, that is m equal to m naught by root over of 1 minus v square upon c square. This is a very famous formula for variable mass. What does it mean? We will discuss now. इसका मतलब होता क्या है? ऐसा बोला गया है कोई भी मास अगर लाइट के स्पीड से, लाइट का स्पीड तुम्हें पता है c इक्वल टू ये भी कांस्टेंट है, और जो लाइट है वो करीब करीब तुम्हारा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में ट्रैवल करता है, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में वो ट्रैवल करता है। तो तुम्हें पता है ना लाइट का स्पीड कितना ज्यादा है, और इसका स्क्वायर कर लोगे तो ये तो बन जाएगा तुम्हारा 10⁻16, राइट। और ये जो नीचे वाला टर्म है, देखो ये जो नीचे वाला टर्म है ये तुम्हारा बहुत कम आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में है तो ये वाला क्वांटिटी ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, थोड़ा मैं समझा देता हूं यहाँ। ये जो m नॉट का मतलब है ये है तुम्हारा रेस्ट मास, और ये जो m है ये है तुम्हारा एक्चुअल मास। c तुम्हें अब तक पता चल गया होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट। एंड v इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अभी हम एक एग्जांपल लेके उसको समझ लें। तो होता क्या है एक्चुअली, मान लो तुम खुद को एक एग्जांपल ले लो, तुम एक मास हो, राइट। अगर तुम कभी भी रेस्ट पे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा मास कांस्टेंट है। अगर तुमने सडनली रनिंग करना स्टार्ट कर दिया विथ ए स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, और उसके आसपास भी चले जाओ, वेलोसिटी ऑफ लाइट का जितना स्पीड है अगर उतने स्पीड से तुम कभी भी रनिंग कर रहे हो तो जो तुम्हारा एक्चुअल मास है ना वो तुम्हारा रेस्ट मास से बहुत ज्यादा हो जाता है। ये वाला मास इस मास से बहुत बढ़ जाएगा। मींस योर m इज ग्रेटर देन m नॉट। m नॉट क्या है, जब तुम रेस्ट में थे, रनिंग नहीं कर रहे थे, रनिंग करने के बाद तुम्हारा मास एक्चुअली बढ़ जाता है। ये फॉर्मूला जो है आइंस्टाइन ने दिया था, m इक्वल टू m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। लेकिन डे टू डे लाइफ में होता है क्या है कि हम तो ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा स्पीड कितना होता है 100 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, हम तो लाइट के आसपास भी नहीं पहुंच पाते, इसलिए ये फॉर्मूला हमारा नहीं यूज होता है। मतलब हम मान के चलते हैं जब तक अर्थ में कोई भी काम हो रहा हो हमारा मास एक कांस्टेंट है, और ये हम एज्यूम कर लेते हैं एक्चुअली। सो हमारा जो मास है वो कांस्टेंट है बोल के हम एज्यूम कर लेते हैं। इसके लिए वो स्पेशल केस बन गया F इक्वल टू m। अगर कभी भी तुम्हारा मास कांस्टेंट नहीं हुआ, अगर तुम्हारा मास वेरिएबल है, तो तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब वो देखेंगे। चलो इसको थोड़ा नोट कर लो। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके, so now we can put heading differential form of second law of motion। So differential form of second law of motion कुछ ऐसा होता है, f proportional to डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर तुम मोमेंटम का डेरिवेटिव निकालो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो वो तुम्हारा बन जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और यहां से तुम एक्चुअल फॉर्मूला, यहां से तुम्हें एक्चुअल फॉर्मूला मिलेगा। देखो कैसे। सो f प्रोपोर्शनल टू d by dt ऑफ, पुट द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम m into v, राइट। चलो, so f proportional to, can I write, एक बार m को हम बाहर निकालेंगे, ये uv मेथड है, तुम्हें पता है ना, डेरिवेटिव में तुम्हें पढ़ाया गया होगा, ये uv मेथड होता है जनरली। एक बार u को बाहर निकालो, मतलब अगर एक बार तुम मान लिए कि मास कांस्टेंट हुआ,
तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर लो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम प्लस, एक बार वेलोसिटी को बाहर निकाल लो, अगर वेलोसिटी तुम्हारा कांस्टेंट हो गया तो मास को डिफरेंशिएट कर लो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इज व्हाट द एक्चुअली फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर हम बोल सकते हैं दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या फिर बोल सकते हो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फोर्स। वही तो है ना जो हम डिस्कस किए थे, मोमेंटम जो चीज है ना वो एक बार मास की वजह से भी चेंज हो सकता है और दूसरी बार वेलोसिटी की वजह से भी चेंज हो सकता है। तो मोमेंटम बनता है मास की वजह से एज वेल एज वेलोसिटी की वजह से। चलो यहां से उठ के क्या हम यहां पहुंच सकते हैं F इक्वल टू ma? डेफिनेटली यहां हम पहुंच सकते हैं। कैसे? देखो, मान के चलो तुम्हारा मास कांस्टेंट है, मान के चलो, सो यहां से देखो कैसे हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू m, तो वैसे ही डेरिवेटिव से बाहर है, इसका कुछ होने नहीं वाला है, लेकिन dv/dt का मतलब है ma प्लस v dm/dt मतलब क्या, कोई भी कांस्टेंट को तुम डेरिवेटिव करो, तुम्हें डेरिवेटिव में पढ़ाया गया होगा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, सो इसको 0 कर लो। सो F प्रोपोर्शनल टू ma, क्यों? क्योंकि v मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 एंड ma एडेड विद 0 इज ma। सो देखो अगेन हम वहां ही पहुंच गए F इक्वल टू ma। सो अगर तुम ये फॉर्मूला याद करोगे डेरिवेटिव वाला तो तुम्हारा काम बन जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर कभी भी तुम्हें वेरिएबल मास से डील करना पड़ा, अगर कभी भी तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि मास तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, तब तुम ये फॉर्मूला मत लगाना, गलत हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। चलो इसको नोट कर लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, चलो अभी थोड़ा न्यूटन्स का सेकंड लॉ को, ये जो न्यूटन्स के सेकंड लॉ है उसका एक अल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी हम देख लेते हैं, वेक्टोरियल फॉर्म में देख लेते हैं। ओके, अल्टरनेटिव स्टेटमेंट मतलब वो वाला स्टेटमेंट भी सही है और ये वाला भी सही है, अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ सेकंड। So if the resultant force coming out to be a vector when number of forces acting on a body then the body ये भी एक स्टेटमेंट है। मतलब पिछला केस में क्या हुआ था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में, जब तुम नंबर ऑफ फोर्स डाल रहे थे तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा था वो 0 आ रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स नंबर ऑफ फोर्स अप्लाई करने के बावजूद अगर तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स एक वेक्टर आ रहा है, मतलब कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि बॉडी डेफिनेटली एक्सेलरेट कर रहा है या फिर बॉडी मोशन में है। दैट इज व्हाट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब यहां है, अब यहां पे तुम्हारा जो एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब सेकेंड लॉ का मतलब है एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब एफ नेट का कुछ वैल्यू आ रहा है और वो वैल्यू तुम्हें बताया गया है ऑलरेडी। एफ नेट का जो वैल्यू आ रहा है, या तो फिर तुम एम ले लो अगर तुम्हारा मास कांस्टेंट है, नहीं तो तुम ऐसा भी ले लो।
अभी जो फॉर्मूला हम डिस्कस किए थे, कौन सा वाला, ये वाला, एफ नेट इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो तुम, एम इंटू डीवी बाई डी या फिर v इंटू, क्या एफ नेट इक्वल टू 0 है? नहीं, ये है। क्या एफ नेट इक्वल टू 0 है? नहीं। सो यहाँ पे मैंने लिख लिया एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0। ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऐसा नहीं है। फर्स्ट यहां से तुम एफ नेट इक्वल टू 0 बना लोगे तो बन जाएगा फर्स्ट लॉ, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0 बना लोगे, ये बन गया तुम्हारा सेकंड लॉ। ओके, मैं भूल जाता हूं, तुम वेक्टर साइन लेना मत भूलना, हमेशा वेक्टर साइन लगाते रहना जो तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी। मास के ऊपर मत लगा लेना, मास एक स्केलर क्वांटिटी। चलो इसको नोट कर लो। अब शुरू करेंगे प्रॉपर। चलो और एक चीज बता देता हूं मैं यहाँ, अगर तुम्हें याद होगा जो स्टेटमेंट पिछली बार मैंने लिखा था, ये ब्रैकेट में एक उसका एक दूसरा नेम लिखा था यहाँ पे, रियल लॉ ऑफ मोशन, उसके नीचे लिखा था मैंने लॉ ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। तो उसका मतलब क्या है अभी पता चल रहा है ना। तो जो फर्स्ट लॉ था ना तुम्हारा, वो लॉ ऑफ बैलेंस्ड फोर्स था, मतलब फोर्स वहां पे बैलेंस हो रहे थे, तभी तो बॉडी मूव नहीं कर रहा था ना। बॉडी रेस्ट कब होगा? अगर तुम्हारा लेफ्ट साइड फोर्स राइट साइड को बैलेंस कर रहा है, अगर तुम्हारा अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड को बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब है बॉडी जहां पे है वहीं पे रुकेगा, मोशन ही नहीं करेगा। या फिर अगर मोशन कर रहा भी होगा तो उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। यही तो है ना फर्स्ट लॉ का मतलब। लेकिन सेकेंड लॉ में ऐसा नहीं है। मतलब मान लो कि 4 और 5 फोर्स तुम्हारा एक बॉडी पे पड़ रहे हैं, तो वहां पे जो बॉडी है तुम्हारा, वो इसका मतलब है वो अभी रेस्ट पे नहीं है, या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे भी मोशन नहीं कर रहा है, वो अभी एक्सेलरेशन में है। मतलब बॉडी का जो स्पीड है ना वो चेंजेस हो रहा है, और बॉडी का अगर स्पीड चेंज होगा तो तुम्हें पता ही है कि उसका मोमेंटम भी चेंज होते जा रहा है। मतलब बॉडी अभी एक्सेलरेट कर रहा है। इसका मतलब है कि एफ नेट इक्वल टू 0 है। मान लो वहां पे अगर 5 फोर्स ऐसा लग रहे हैं, F1 F2 F3 ऐसा अगर लग रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो 0 नहीं आने वाला है। यही मैं बताना चाहता हूँ। पिछले केस में ऐसे होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, बॉडी अभी मोशन करेगी। ओके, तो ये उसका स्टेटमेंट। चलो स्टेटमेंट बहुत हो गया, अभी डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। उसको थोड़ा नोट कर लो। हो गया ना तुम्हारा स्टेटमेंट। चलो, तो अगले क्लास से हम इसका न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। उसका थोड़ा डेमो दिखा देता हूं मैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक बॉडी है तुम्हारा, जिसका मास तुम्हें गिवन है 10 kg, और कोई राइट साइड से फोर्स अप्लाई कर रहा है 5। तो यहाँ पे बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ओके, और जो दूसरा वाला चीज है, ओके, बाकी जो नॉर्मल रिएक्शन वो तो हम निकालेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा एजम्पशन हमें लेना है कि ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है। ओके, तो इसको थोड़ा मिस्ट्री रखते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, ये क्या है वहां से हम डिस्कशन करेंगे।